حال ہی میں ایک بہت پریشان کر دینے والا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس کو کہ گروک کہا جاتا ہے. یہ ٹویٹر کا اے آئی چیٹ باٹ ہے، اور ایلون مسک نے جب سے ٹویٹر کی ایکس کی اونرشپ لی ہے تو وہ فری اسپیچ کے نام کے اوپر ہر قسم کی ہیٹ اسپیچ، ڈینجرس اسپیچ، انڈیسنسی، obscenity، ان ساری چیزوں کو نارملائز کر رہے ہیں. اور اس کی ویو کا حصہ ہے کہ یہ جو گروک نام کا ایک اے آئی چیٹ باٹ ہے، اس نے لوگوں کی ریکویسٹ کے اوپر ہر قسم کی چیزیں پبلش کرنا شروع کر دی ہیں. تو ابھی جو ہم لوگوں کو ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے جو کہ دنیا بھر میں وائرل ہو گیا ہے، وہ یہ کہ لوگ گروک کو کمانڈ کرتے ہیں کہ ہے گروک، اس انسان کو ایسا کرو شاور کے نیچے کھڑا کر دو، ہے گروک اس انسان کو ایسا کرو ایک بکینی بنا دو، گروک اس کا ٹاول اتار دو، گروک ایسا کرو اس کو کلاؤن بنا دو. اور یہ ٹرینڈ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور لوگ بہت اس سے محظوظ ہو رہے ہیں. لیکن جس چیز کی بہت زیادہ وری ہے وہ ہے کہ خاص طور پہ خواتین اور بچے. اینڈ وی آلریڈی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایٹ لیسٹ جتنی بھی ویسٹرن میڈیا رپورٹ کر رہی ہے اس وقت، وہ یہ کہ زیادہ تر جو گروک کو کمانڈز جا رہی ہیں وہ یہی جا رہی ہیں کہ although گروک کے اوپر کمپلیٹ نیوڈیٹی نہیں ہے، بٹ دا کلوزسٹ دیٹ یو کین کم ٹو نیوڈیٹی، اس کا ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو اور خواتین کو، کہ گروک کو ایسے ایسے کمانڈز دیے جا رہے ہیں کہ بارڈر لائن سیکشولائزڈ پکچرز لوگوں کی جنریٹ کی جا رہی ہوں اور ان کے کنسنٹ کے بغیر. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ آپ کسی کی بھی تصویر کہیں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، اٹھا سکتے ہو، اور آپ اس کی تصویر گروک کو کہہ سکتے ہو کہ یار اس کو یہ کر دو، اس کو وہ پہنا دو، اس کو وہ پہنا دو. اور دراصل بات پہنانے کی نہیں ہے، بات ہے لباس اتارنے کی. تو بے لباس کیا جا رہا ہے. سو ابھی جو کمانڈ اس کو دی جا رہی ہے، پتہ یہ چلا ہے کہ چھوٹے چھوٹے 12 سال کے بچے اور خاص طور پہ بچیاں، ان کی اس طرح کی پکچرز جنریٹ کی جا رہی ہیں گروک کے تھرو. ان کو جی سوئم سوٹ کے اندر آپ شو کر دو. سو دیٹ از پیڈوفیلیا. اور گروک اس وقت کیا کر رہا ہے کہ پیڈوفیلیا کو بڑھاوا دے رہا ہے اتنی ایزی ایکسیس لوگوں کو دے کر کہ وداؤٹ اینی کانسیکوینسز، وداؤٹ اینی ریپرکشنز واٹس ایور، بچوں کی کہیں سے بھی تصویر اٹھائی جا رہی ہے اور اس کو اس کی سیکشولائزڈ اے آئی ورژنس جنریٹ کی جا رہی ہیں. اس کے اوپر کوئی لیگل کنٹرولز، کوئی لیگل میکنزمز اس سچویشن کو کور نہیں کر پا رہے، بیکاز جو امپیونٹی ہے بگ ٹیک جائنٹس کی جو انجوائے کرتے ہیں سلیکون ویلی میں بیٹھ کر، وہ لوگ تو پیسہ بنا رہے ہیں. ابھی خبر آئی ہے کہ ایلون مسک نے کوئی $20 بلین اناؤنس کیا ہے کہ اس کے گروک نے جنریٹ کیا ہے. سو وائل دیز بگ ٹیک جائنٹس آر جنریٹنگ huge revenues and incomes and profits for themselves, we also have to look at the cost at which this is being done. This is being done at the cost of the safety of children and also at the cost of dignity of women. So women کی جہاں تک بات ہے، جتنے بھی کمانڈز ریکارڈ کیے گئے ہیں ایٹ لیسٹ انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے، میں گارڈین کے اندر یہ آج ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، تو وہ یہی رپورٹ کر رہی ہے کہ زیادہ تر کمانڈز یا تو بچوں کی، جس پہ میں بات کر چکا ہوں، یا خواتین. اب خواتین کو، خیر میں پاکستان میں رہتا ہوں تو یہ کوئی بڑی نئی بات نہیں ہے، پر اگین دس از اے گلوبل فینومینن کہ اگر کوئی خاتون اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے یا پتہ چلتا ہے کہ دس از اے وومن اینڈ شی ہیز اے مائنڈ آف ہر اون، تو سب سے اچھا طریقہ جو کہ لوگوں کو لگتا ہے اس کے اوپر بدلہ نکالنے کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ ایسا کرو اس کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دو اینڈ جسٹ بلی ہر انٹو سائلنس. اور پھر اس سے زیادہ اور کیا ہی فائدہ مند بلی کرنے کا طریقہ اس طرح کے ٹرولز کو اور ان سیلز کو نظر آتا ہے دین یہ کہ آپ کو ایک گروک نام کی چیز ملی ہوئی ہے، وہ آٹومیٹکلی کسی کو بھی بے لباس کر دے گا. اور پھر پاکستان میں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے کافی نون جرنلسٹس ہیں یا پولیٹیشینز ہیں، ان کے حوالے سے کمانڈز دی جا رہی ہیں گروک کو کہ ایسا کرو. یہ جو میں بات کر رہا ہوں جو مرد حضرات ہیں، مطلب میل جرنلسٹ، اس میل جرنلسٹ کو بکینی پہنا دو، اس میل جرنلسٹ کو گنجا کر دو، اس میل جرنلسٹ کو کلاؤن بنا دو. اور یہ وہ جو کلاس روم کے اندر نہیں ہوتا، خاص طور پہ جو بورڈنگ سکولز میں ہوتا ہے کہ وہ لڑکے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں جسٹ ٹو بلیٹل دی ادر پرسن. وہ چھوٹا سا وہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کا کھیل تماشا ہوتا ہے نا، all those petty tactics to name and shame the other person, all those petty tactics to silence and bully the other person، تو اس کے طور پہ بھی بہت استعمال کیا جا رہا ہے کہ اس کو یہ پہنا دو، وہ اتار دو، اس کو اس طرح سے دکھاؤ، اس کو شاور کے نیچے کھڑا کر دو. سو یہ بہت مجھے ڈسٹربنگ اس لیے لگا ہے بیکاز یوں تو پھر ہر کوئی ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالے گا. اور پاکستان جیسے ملک میں جدھر یہ لوگ بہت چیختے رہتے ہیں کہ جی ہم تو ایک اسلامی جمہوری ہیں اور ہم لوگ LGBT کے بڑے خلاف ہیں، ویسے مجھے یہ چیز بڑی عجیب لگ رہی ہے. اتنے سارے مرد حضرات ہیں، وہ دوسرے مرد حضرات کو بکینی پہنانے کے اوپر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ یہ کس قسم کی ہومو ایروٹسزم چل رہی ہے؟ بٹ سارکیزم تھا، یہ زیادہ نہ چیخنا شروع کر دینا. Keeping my sarcasm aside, my problem with this is کہ we are not going to be having any discourse anymore. وہ پہلے ہی ختم ہو گیا تھا ڈسکورس. لوگ پہلے سے ہی اتنے پولرائز تھے، غصے میں تھے،
पॉलिटिकल लीडर से शुरू होकर आपके जितने भी पॉलिसी मेकर्स, लॉ मेकर्स हैं, और वहां से शुरू होकर हर गली के सड़क छाप की तरफ, तो सारों को सिर्फ चीखना और छोटी छोटी शॉर्ट रील्स में किसी का मजाक और तमस्कुर उड़ाना, बस यही आता था। और इसी फायर के अंदर जो और फ्यूल ऐड करेगा वो है ये ग्रॉक, क्योंकि अब तो हम इस चीज के ऊपर उतर आए हैं कि हम अगले के लिबास को ही उतार देंगे, अगले कपड़ों को उतार देंगे, और हम उन लोगों को, वी आर गोइंग टू बी परेडिंग पीपल नेकेड जस्ट फॉर सेटिस्फेक्शन, जस्ट बिकॉज वी हैड द लास्ट वर्ड। और लास्ट वर्ड क्या है? एक एआई जनरेटेड इमेज, वो भी लोगों के कंसेंट के बगैर। बट देन देयर इज नो एंड टू इट ना, बिकॉज अगर आज आप किसी के हवाले से कह रहे हो कि जी ये एआई पिक्चर जनरेट कर दो, तो वो आपके भी हवाले से कर देंगे। ऑन द अदर हैंड जो एनोनिमस अकाउंट्स हैं जो कि ग्रॉक को इस तरह के कमांड्स दे रहे हैं, तो हाँ, उधर किसी की पकड़ नहीं हो सकती। एंड इट मीन्स कि पीपल इन द पब्लिक आई, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, एनीबडी who is there out in the public or who's working in the public domain, अब उनको तो ये होगा कि यार हमारी कोई भी बात किसी को बुरी लग जाए, हमारे साथ किसी भी चीज़ पे कोई डिसएग्री कर जाए, तो rather than having a sophisticated debate or an argument, इधर सीधी तरह से क्या किया जाएगा? आपने किसी की एआई पिक्चर जनरेट करनी है कि आपने किसी आदमी को, किसी बुजुर्ग को, और ख़ास तौर पे डेवस्टेटिंगली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिधर के ख़वातीन के ऊपर और ज़्यादा रेपुटेशन का बैगेज डाला जाता है, आपने किसी भी ख़वातीन को बस इस तरह से बेलबास कर देना है जस्ट टू शट देम अप, तो फिर लोग ज़रा कतराएंगे, डरेंगे कि अच्छा ऐसा करते हैं, हम लोग इतना ज़्यादा नहीं बोलते, हम अपनी कुछ ओपिनियंस अपने पास ही रखते हैं, बिकॉज अगर हमने मुंह खोला किसी को बुरा लग गया तो वो तो इस तरह से हम लोगों को बेलबास करेंगे। और अभी क्या है, कन्फ्यूजन ये है कि आजकल समझ नहीं आता एआई क्या है और असल में जो हो रहा है वो क्या है। मतलब कि एआई कंटेंट वर्सेस रियल जेन्युइन कंटेंट, उसके बीच में फ़र्क करना और मुश्किल होता चला जा रहा है विद ग्रेटर एडवांसमेंट इन एआई टेक्नोलॉजी एंड द फैक्ट कि आप इलॉन मस्क की कंपनी को $20 बिलियन का मुनाफा और इनकम दे चुके हुए। इट मीन्स कि दे आर गोइंग टू बी एबल टू कम अप विद इवन मोर सोफिस्टिकेटेड versions of artificial intelligence which is going to blur the lines between genuine and AI generated deepfake content। तो उससे क्या होता है कि अगर किसी की एक पिक्चर आपने बना दी है, जी ये जर्नलिस्ट है, इसको हर कोई बड़ा सीरियसली लिया करता था, अब हमने ग्रॉक को कहकर इसकी एक इमेज जनरेट कर दी है जी कि इसने बिकिनी पहनी हुई है, अब आप हर जगह पे उस तस्वीर को छालोगे, हर जगह पे वही तस्वीर सर्कुलेट करोगे कि उस इंसान की पहचान ही वो बन जाए कि जी उसने 2 पीस बिकिनी पहनी हुई है। एंड यू टेकिंग अवे फ्रॉम द सीरियसनेस ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्कशन, यू आर ruining people's reputations which they have taken so long टू शेप अप। आप उनकी रेपुटेशंस को, हार्ड अर्न रेपुटेशंस को ऐसे उसकी धज्जियां उड़ाओगे क्या करके कि आप बॉर्डर लाइन पोर्नोग्राफिक पिक्चर्स लोगों की जनरेट कर रहे हो। तो सवाए हमारी सोसाइटी के अंदर और पोलराइजेशन के, और नफरत के, और डिवीजन के, और एक दूसरे के खिलाफ मड स्लिंगिंग के, दिस इज नॉट गोइंग टू ऐड एनी वैल्यू व्हाटसोएवर। और मैं ये सिर्फ सोचता हूँ कि जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की है कि एआई बहुत ही अब जेन्युइन हो चुका है, इन द सेंस कि एआई इतना सोफिस्टिकेटेड होगी इसकी टेक्नोलॉजी कि अब मुश्किल हो जाता है फ़र्क करना कि क्या असल में हुआ, कौन सी तस्वीर असल है तो कौन सी तस्वीर नकली है। तो अभी मैंने हाल ही में ये भी देखा, पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोग नोटिस करें, विद इन पाकिस्तानी पोलिटिकल लैंडस्केप इतनी नफरत है वैसे ही, और ख़ास तौर पे 2022 के बाद से यहाँ पॉलिटिकल सिनारियो में चीज़ें इतनी एग्रीवेट और एस्केलेट हुई हैं कि एआई और डीप फेक के यूज़ के थ्रू आप किसी के भी मुंह से कुछ भी अब कहलवा सकते हो। हमने ये कुछ हफ्ते पहले ही देखा कि पीटीआई के कुछ कारकुनान थे और वो फॉरेन इंटरनेशनल मीडिया को कुछ इंटरव्यूज़ दे रहे थे और उनके मुंह में बिल्कुल ऐसी बातें घुसेड़ दी गई थी जो कि उन्होंने कभी कही भी नहीं थी। मिसाल के तौर पे नौरीन न्याजी जो कि इमरान खान की बहन है, और वो जब इंडिया टुडे गोदी मीडिया के ऊपर गई थी, जो कि एक प्रोपेगेंडा चैनल है बाय द वे, उसके ऊपर वो इंटरव्यू दे रही थी, तो उनके मुँह से ऐसी बातें निकलवाई हैं एआई यूज़ करके उनके सियासी मुखालफिन ने, जो कि नौरीन न्याजी ने कहीं भी नहीं थी। मैं यहाँ पर आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से मोदी जी से भी गुजारिश करती हूँ कि अगर अब आप ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे तो ही इमरान खान जेल से बाहर निकल सकते हैं। कि जी नौरीन न्याजी कहते हुए नजर आ रही थी उन फेक डीप फेक वीडियोस के अंदर कि अब मोदी को एक और ऑपरेशन सिंदूर करना होगा तो तभी इमरान खान रिलीज हो सकते हैं। हालांकि शी नेवर इवन सेड दैट, शी माइट हैव सेड अ लॉट ऑफ अदर इंफॉर्मेटरी थिंग्स फॉर पीपल, आई डोंट नो, लेकिन दिस व्हेन शी डिड नॉट स्पेसिफिकली से, आप फिर भी उनके मुंह में बातें डाल रहे हो। तो हमारा तो एक इस तरह का मुल्क है ना जिधर के हर कोई एक दूसरे को बिल्कुल एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट
आराम से इजीली फतवे बांट रहा होता है, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहा होता है कि कौन मुहिब वतन है तो कौन गद्दार है, तो कौन अच्छा सच्चा मुसलमान है तो कौन काफिर है। इस तरह के एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम के अंदर जब आप इतना आसान कर दोगे किसी से कुछ भी कहलवाना जो कि उसने असल में कभी कहा भी नहीं था, तो आई थिंक कि ये लोगों की सिक्योरिटी को और जानों को रिस्क में डाल सकते हैं। उसी तरह से मुझे याद है यल्दा हाकिम के स्काई न्यूज़ के प्रोग्राम के ऊपर जब अलीमा खानम गई थी, इमरान खान की जो दूसरी बहन है, उन्होंने कुछ बातें कही थी तो उनके मुंह के अंदर वर्ड्स डाल दिए गए कि जी इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है क्योंकि इमरान खान बड़े लिबरल हैं और जो अभी हमारे आज के हुक्मरान बैठे हुए हैं वो इस्लामिस्ट हैं। Yalda, this Asim Munir, is a very radicalized Islamist, Islamic conservative, and this is the reason why he yearns for a war with India, because his Islamic radicalization and conservatism is forcing him to fight against those who don't believe in Islam. This is what differentiates him from Imran Khan, who is a pure liberal. ऐसी कोई बात अलीमा खानम ने कही नहीं थी, और जिन्होंने ज़ेन अपना नहीं लड़ाना होता वो तो ज़ेन नहीं लड़ाएंगे। वो एक मिनट के लिए ये नहीं सोचेंगे कि इमरान खान तो खुद लिबरल्स को नफरत करते हैं, इमरान खान तो खुद कहते हैं कि जी लिबरल्स खूनी है और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बड़ा बुरा रहा है पाकिस्तान के लिए, और इमरान खान तो बार बार कहते थे कि वो मुल्क में शरीयत लाना चाहते हैं, रास्ते में दीना बनाना चाहते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? अलीमा खानम कह रही है कि जो अभी हमारे पास हुक्मरान है वो इस्लामिस्ट है और इमरान खान लिबरल है। नहीं, उन्होंने लोगों ने ये नहीं सोचा, they just came to the conclusion this is exactly what Alima Khanum had said, but that's the point, Alima Khanum never said that। तो अगर आप किसी के मुंह में कुछ भी डाल सकते हो, तो मैंने पाकिस्तान के अंदर देखा है कि जिस किस्म की मॉब वायलेंस होती है, भूलना मत कि सियालकोट के अंदर प्रियंका कुमारा के साथ क्या हुआ था। तो पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि ख़ास तौर पे जो मजहबी इंतहा पसंद हैं और जो उनके ग्रो और हजूम लोगों के ऊपर पड़ जाते हैं, तो एक ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप चल रहा है और उसके ऊपर भी बड़ी पॉलिटिक्स खेली गई। और हमने देखा है कि किस तरह से शाहजेब खानज़ादा और इंजीनियर मिर्ज़ा ने भी हाल ही में उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू भी की थी कि किस तरह से झूठे केसेस मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक के थ्रू तो और ज़्यादा आसान कर दिया जाएगा कि आप तो किसी से कुछ भी करवाना शुरू हो गए हो, आप तो किसी के मुंह में कुछ भी वर्ड्स डालना शुरू हो गए हो, तो आप तो बड़े आराम से किसी को भी इंसाइट कर सकते हो, क्योंकि हमने पाकिस्तान में देखा है, यहाँ ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है। और उस तरह के ज़मानों में जब कोई एआई भी नहीं होता था, तो अब ये ग्रॉक कह लो, चैट जीटीपी कह लो, ओपन एआई कह लो, जब से ये चीज़ें आ गई हैं और इन्होंने ना कि सिर्फ इमेजेस बल्कि बहुत कन्विंसिंग रियल साउंडिंग वीडियोस जनरेट करना शुरू कर दिए हैं, तो फिर तो कोई भी सेफ नहीं है। फिर तो झुमघट्टे और हजूम सबके ऊपर आ जाएंगे, और फिर उल्टा जो हजूम के मेंबरान है लोग उनकी भी इस तरह की वीडियोस बनाएंगे जिधर के वो मुंह से कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जिससे कि लोगों को लगे कि अरे ये तो गद्दारी हो गई, जिससे कि आप इस तरह की वीडियोस पेश कर रहे हो कि किसी से भी कुछ भी कहलवा सकते हो, आप किसी के ऊपर भी कोई भी इंप्लीकेशन डाल सकते हो कि अरे इसने गद्दारी कर दी, इसने तो कोई बैरूनी साजिश करने की कोशिश की है, या इसने तो कोई तौहीन मजहब कर दी है। सो अगर एआई और डीप फेक के इस्तेमाल को इस तरह से मादर पे तजाद छोड़ दिया जाएगा, और जैसा मैंने कहा कि वो इतना रियलिस्टिक लग रहा होता है कि इंस्टिंक्ट ये होता है कि आप वेरीफाई भी नहीं करना चाह रहे होते, तो इस डिसइंफॉर्मेशन की एज में आई रियली वरी अबाउट नॉट जस्ट द फ्यूचर जनरेशंस, बट हम में से भी जो मिलेनियल्स हैं जिन्होंने इतना बड़ा एक ट्रांजिशन देखा है कि एक इंटरनेट एज के बाद से स्मार्टफोन्स की एज आई और अब हम एआई की और एआई टेक्नोलॉजी की एज में जा चुके हुए हैं। वी हैव सीन सच मैसिव शिफ्ट्स इन टेक्नोलॉजिकल स्पेसेस। I don't think we are quite ready and we can grasp the pressures of being able to cope with and being able to update ourselves to get attuned to these new developments. So उसकी वजह से क्या हो रहा है कि I think AI is growing and technology is growing at a much faster pace than we can catch up with it. And it means कि उसकी वजह से कुछ legal loopholes और लकूना रह गए हैं जिसको कि एलॉन मस्क जैसे लोग, और उसने अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी पार्टी करते हुए एक तस्वीर भी पोस्ट कर दी है। तो वर्ल्ड लीडर्स, बिग कॉर्पोरेट एंड टेक गुरुज, इन सब ने जो आपस में एक संगठन बना लिया है, तो उसके चलते दे आर गोइंग टू बी एबल टू मिंट लोड्स ऑफ मनी एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स सेफ्टी, एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स सिक्योरिटी, एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स लाइव्स। और इसको कंट्रोल करने का कोई आपके पास चारा नहीं है, तो फिर आई थिंक वी आर ऑल डन फॉर। मैं ये देख रहा हूँ कल से, खैर इधर पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं, हे ग्रॉक मेरी पिक्चर्स को ना यूज़ करना, मैं ऑथराइज नहीं करता कि मेरी पिक्चर्स को तुम यूज़ करो, और ग्रॉक आगे से जवाब दे रहे हो ओके जी मैं नहीं करूँगा आपकी पिक्चर्स को इस्तेमाल। और फिर क्या होता है कि ग्रॉक फिर भी आपकी पिक्चर्स बना रहा है, वो उतना ही चीकी है जितना एलॉन मस्क खुद है, बिकॉज दिस इज अ मिनी एलॉन मस्क हिमसेल्फ ना। बेसिकली एलॉन मस्क हु इज अ रियल लाइफ स्वेटिंग ब्रीदिंग ट्रोल, उसकी एक एआई और एक ज्यादा एफिशिएंट वर्जन अब बन चुकी हुई है जो कि अब महा ट्रोलिंग करती है, बिकॉज इट्स प्रेजेंट एट द सेम टाइम एट सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस के
करोड़ों हाँ लोग कमांड दे रहे हैं बैक वक्त ग्रॉक को, और ग्रॉक उन करोड़ों लोगों की कमांड्स को विद इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स एंड मिनट्स केटर कर रहा है, जिसकी वजह से वो न जाने किस किस्म का नाजेबा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, और लोगों को एम्बेरस करना, लोगों की तजलील करना, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट में लाना, लोगों की जितनी बची कुची डिग्निटी है उसको छीनना, ये इसका एम है. इट्स एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी. एंड डिस इन्फॉर्मेशन वैसे ही हमारी आज के दौर का इतना बड़ा एक मेनेस है कि उसके अंदर अगर एआई जैसी, मैं कहता हूं कि सैम ऑल्टमैन और एलॉन मस्क उसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डिसइंफॉर्मेशन इज गोइंग टू ओनली स्प्रेड लाइक फायर. इट्स ओनली गोइंग टू इंक्रीज फर्दर. इट्स ओनली गोइंग टू बी exacerbated. Political point scoring, whether you want to further your inner hatred, whether you want to sow greater and further division between people, या आपने communal disharmony लोगों के बीच में लानी है, all you have to do is you need a chatbot or you need a Grok or you need an OpenAI at your command. और वो जो कहा जाता है कि your wish is my command वाली चीज़ जो जीनी कहा करता था, हम बचपन में अलादीन का कार्टून देखते थे, वो एक बहुत ही horrific, एक बहुत ही टेरिफाइंग डिस्टोपियन रियलिटी बन चुका हुआ है. तो आई डोंट थिंक कि लोग मुझे सुनने के बाद बाज आएंगे, वो ये कहेंगे कि अरे ऐसा करो, इसकी भी ये बहुत इधर बैठकर बोल रहे हैं ना, बहुत बड़ा बोला बना हुआ है, इसकी भी हम लोग ग्रॉक को कहते हैं कि चलो जी इमेज बनाओ. आई एम रेडी फॉर दैट. आई नो दैट इज गोइंग टू हैपन एंड आई कैन नॉट कंट्रोल इट. लेकिन अगर किसी और के लिए कुआं खोदोगे तो उसमें खुद भी गिर सकते हो. तो अगर किसी दिन तुम रेयर प्रोफाइल से आ गए या किसी के हाथ तुम्हारी तस्वीर लग गई और फिर वो भी तुम्हारी इसी तरह की तस्वीरें ग्रॉक के थ्रू बनवाएगा, I don't know. I'm not sure whether you'd want that for yourself or not, but I'm assuming if you are a normal, functioning, breathing human being, you wouldn't really want that for yourself. So why contribute to creating a world which you yourself wouldn't want to live in? तो इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो, एआई को यूज़ कर रहे हो. मैं एआई से वैसे भी नहीं डरता. मैं कहता हूँ कि बनने दो, डेवलप होने दो एआई को, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, लेट इट डेवलप. And I really don't want the state to be censoring us too much. I want, although, कि जो यूजर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं इन सर्विसेज के, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने अपने अकाउंट्स खोल रखे हुए, एटलीस्ट आप जब यूज़ कर रहे हो इन प्लेटफॉर्म्स को, डू इट रिस्पॉन्सिबली. बिकॉज सोच लो कि the world that I'm shaping up for others, would I want the same world to be shaped up for me? Would I also want to bear the brunt of what I am putting up against other people? अगर आपका जवाब इसमें ना है, if you have an honest conversation with yourself and you realize that you would not want कि आपकी pornographic images या आपके बच्चों की या आपके रिश्तेदारों की या आप जिसको भी अगर चाहते हो या जिसकी भी आपको कदर है या परवाह करते हो, आप नहीं चाहते कि उनकी pornographic images generate हों, तो आप लोग ज़रा सोच लोगे, गिरबान में झांक कर देखोगे और आप इसी नतीजे पहुंचोगे कि let's not get into this. डिसएग्रीमेंट अपनी जगह, तानाबाजी कर लेंगे, किसी को टॉन्ट कर देंगे, सार्कास्टिक रिमार्क्स दे देंगे. सार्केज्म तो खैर मेरी तो लाइफ लाइन है. बट दिस इज जस्ट स्टूपिंग टू लो, stooping so damn low that you are yourselves contributing to creating a world which is going to be very, very dangerous for, if not yourself, for your children to live in.